एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो कर आनंदो सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै त अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਏਕੋ ਸਿਮਰਿਐ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਏਕੋ ਸਿਮਰਿਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰੀਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਤੀਰੀਐ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ
सब संसार सुख नाम बिन। तन तन होसी चार, तन तन होसी चार, जाने कोई जन। डिठा सब संसार सुख नाम बिन। डिठा सब संसार सुख नाम बिन। डिठा सब संसार सुख नाम बिन। वाहिगुरु। सारे बोलिए धन गुरु तू ही तारनहार, तू ही पालनहार, कर दियो बेड़ा पार। धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, तू ही निरंकार, तू ही। ऐतिहासिक घटना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पौंटा साहब में विराजमान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तू ही निरंकार जो बोल रहे हैं, तू ही निरंकार, कईयों के मन में आएगा भाई
ये क्या ध्वनि है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर तरह के लोग होते हैं, इसका महत्व समझ लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो सीधा गुरु नानक के चरणों से जोड़ देती है, तू ही निरंकार। सबसे पहले ये वचन गुरु नानक पातशाह के मुख से निकले थे, तू ही निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कुछ तू ही है, हर जगह तू ही है, करने वाला तू है, एक ओंकार तू है, सतनाम तू है, कर्ता पुरख तू है, सब कुछ तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पौंटा साहब में बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसा कोई लिखारी नहीं हुआ साध संगत जी। अगर जो लिखने वाले लेखक हैं ना, जो बड़े बड़े लेखक हैं, वो जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचनाएं पढ़ते हैं तो हैरान होते हैं कि ऐसे लिखारी हम सोच भी नहीं सकते जो वो लिख गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे छंद लिख गए, ऐसे ऐसी बाणी लिख गए, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी। आप श्री दसम ग्रंथ बाणी पढ़ के देखो, हैरान हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जाप साहब जी ले लो, भुजंग प्रयात छंद, सांप की चाल वाले छंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई कुछ जो बड़े बड़े लिखारी, जानकर, नॉलेज वाले लोग हैं, ज्ञानी है, कहते हैं कि दिमाग खुल जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फिर से हाथ में कलम लिए, कागज लिए, सेवादार पास में खड़े, पौंटा साहब। पौंटा साहब की एक छोटी सी घटना, वो भी दास सुना दे आपको। पौंटा साहब का नाम आया तो आपने कभी पौंटा साहब के दर्शन किए? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्थान, जहाँ पर 52 कवियों के दरबार लगते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस गुरुद्वारे के बाहर ही नदी बहती है, यमुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक आंखों देखा चमत्कार है, कभी भी जाके आप देख लो, और साइंटिस्ट भी देखकर हैरान होते भाई ये क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दरबार सजा है। और जब आपको पता है, जब नदी एकदम कॉर्नर में, एकदम दरबार के टच में नदी है, यमुना बहती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दरबार सजा है, संगत बैठी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। शोर इतना है जल का, नदी के पानी का इतना शोर है, उफान पर है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में 2 बातें आती, कहीं पे लिखा कवि दरबार सजा है, सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं पे लिखा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि संगत ने बेनती की, पातशाह बहुत शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मुख से स्वाभाविक निकला, यमुना को कहा, यमुना की तरफ देख के, भाई थोड़ी शांति से यहाँ से गुजर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ से थोड़ा शांति से गुजर। साथ संगत जी, इतिहास है, आप जाके देख लो, गुरुद्वारा पार कर लो, वहाँ पे नदी बह रही, इतना शोर है कि आपको बातें करो सुनाई नहीं देगी। गुरुद्वारा क्रॉस करके इस तरफ चले जाओ, इतना शोर है कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। पर जहाँ गुरुद्वारा है उसके पास से जब गुजरती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है आज तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुदरत जिसकी गुलाम है, कुदरत के मालिक मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक बार मुख से वचन निकल गया, बस आज तक यमुना नदी वहाँ से शांति से गुजरती है, एकदम कोई आवाज़ नहीं पानी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा गुरुद्वारा, बड़ा प्यारा स्थान बना हुआ है, रमणीक है, पहाड़ियों के बीच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कलम ले ली, कागज ले लिया, और उसी स्थान पर बैठ के उन्होंने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया साथ संगत? कमाल है, श्रवण कीजिए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार,
निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धन गुरु नानक एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धन गुरु नानक। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कलम ले ली, कागज ले लिए और लिखना शुरू किया, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। और लिखते गए लिखते गए लिखते गए, सुरत जुड़ गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी एक भक्ति है, लिखण भक्ति। कई लोग राम 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 लिख के किताब लाते हैं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु लिखकर बच्चे लाते हैं। ये लिखण भक्ति है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, ताने सो कागज कलम ताने, ताने पांडा ताने मास्टर, ताने लिखारी नान का जिन नाम लिखाया सच। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ धन है, वो कलम धन है, वो कागज धन है, वो लिखने वाला लिखारी धन है जो सच लिख रहा है। सच तो एक ही है, राम नाम सत्य है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का नाम ही सच है, बाकी सब झूठ है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते जा रहे हैं, तान गुरु नानक तू ही निरंकार, तान गुरु नानक तू ही निरंकार, तान गुरु नानक तू ही निरंकार। अब तान गुरु नानक रह गया, अब ये चल रहा है, तू ही निरंकार, तू ही कई कागज लिख दिए, हिसाब ही नहीं कहते। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, समय मन जुड़ गया, वृत्ति जुड़ गई। अब तू ही निरंकार, तू ही निरंकार हट गया। अब ये चल रहा है, अवस्था ऊपर पहुंचते जा रही है, नजदीक पहुंचते जा रही है। पहले तान गुरु नानक तू ही निरंकार, कि तू ही निरंकार, फिर कि तू ही निरंकार, फिर तू ही निरंकार। अब क्या कर रहे हैं? तू ही तू ही तू ही तू तू ही 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 से बोलिए धन गुरु, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही लिखते जा रहे हैं। अब आखिर में ही भी मिट गया। अब क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तू 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 कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू पर आ गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये अवस्था हो गई कि बस तू। पहले तान गुरु नानक तू ही निरंकार, फिर एक तू ही निरंकार, फिर तू ही निरंकार, फिर तू ही फिर तू।
ये अवस्था है सत्संग जिसे कहते हैं प्रेम की अवस्था। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ तू रह जाता है, मैं नहीं रहता। जब हम होते तब तुम नाही। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मैं था तब तक तू नहीं था, अब तू ही मैं नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम में सिर्फ वो रहता है, अपनी हस्ती मिट जाती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम की चरम सीमा में और कह रहे हैं तुम 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 कितना रस है तू में, सिर्फ तू, कितना रस है। क्यों ना इतिहास में लिखा है, लिखते 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 श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 16 मन कागज लिख दिया तू से। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। 16 मन कागज भर गया सिर्फ तू लिखने से। ना जाने कब तक समाधि लगी रही, तू। और जब समाधि से उत्थान हुए, खुली समाधि, तो सेवादार ने कहा पातशाह इतना कागज। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। कैसे संभाले इसका ग्रंथ बनाए, क्या करें, कैसे संभाले इसका। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो वचन किए थे बड़े कीमती है, हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया काम कर गए। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। एक तरह से हमें वर दे गए। कहने लगे इस कागज का तो जल प्रवाह कर देते हैं मर्यादा से करके, पर ये जो घड़ियाँ बीती है ना निरंकार के चरणों से जुड़कर तो करते हुए 16 मन कागज लिखा गया, तोला गया। तो कहने लगे कोई इस घटना को याद करके, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वर दिया, ये जो घटना भी हमने सुनी है, इस घटना को मन में बसा के, याद करके, सुन के, अगर कोई 16 बार भी मन जोड़कर तू कह देगा ना, 16 बार केवल मन जोड़ के। मन जोड़ना क्या है, सुरत शब्द में। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। केवल 16 बार कह देगा तो जो फल 16 मन कागज लिखने का मिला है वो हर एक को मिल जाएगा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों की भक्ति सेकंडों में हो जाएगी अगर तू में 16 बार भी मन जुड़ गया। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए धन गुरु नानक तू ही निरंकार कोई छोटी पंक्ति नहीं है, खाली तू को वैल्यू समझो। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि तू में सब आ गया। आइए मन एकाग्रचित करें, सुरत शब्द से जोड़े। गुरु साहब जी की हजूरी में बैठे हैं, ये कथा अभी श्रवण की है। मन जोड़कर कम से कम 16 बार तो मन जोड़ लें। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धुनी लगाते हैं तू की। गुरु नानक मेहर करे, मन हमारा अपने चरणों से खुद जोड़ ले। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना को याद रखना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख रहे हैं पौंटा साहब के किनारे, यमुना के किनारे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अगर ये तू वाली अवस्था हो जाए ना साथ संगत जी, वाणी कहते कि हर आवाज में तुझे तू की आवाज ही सुनाई देगी। वाणी की पंक्तियां हर हट भी तू करे, बोले पली बाण, हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर हट कहते हैं पुराने ज़माने में बैल बांधा होता था ना, पानी निकालने के लिए कुएं से, वो घूमता रहता था। तो वो जब लोहा लोहे से टकराता है तो आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है ना, घूमता एक चक्कर काटता है। तो यहाँ पर वाणी में लिखा है कि हर हट भी तू करे, हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसमें से भी तू दिखाई देता है, आवाज़ तेरी सुनाई देती है, सुरत जुड़ गई तू से, हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक अवस्था है अगर प्राप्त हो जाए, हर आवाज़ में से उसकी आवाज़ सुनाई देती है, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तबला बजाना तू सारी बोलिए तू धन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तू ही तारनहार, कर दो बेड़ा पार गुरु जी, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। धन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। भगवान से रोज ये धुनी लगवाया करते थे। कीर्तन की शुरुआत ही इससे होती थी, एक तू ही निरंकार, और कीर्तन की समाप्ति भी तू ही निरंकार। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, निराकार आकार ज्योत जग मंडल करे हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आप नारायण कलाधार, खुद धरती पर आए गुरु नानक का रूप लेकर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तू ही निरंकार। जब बाबा नंद सिंह जी ने अपने स्वास्थ्य के आगे ना शरीर छोड़ा, उस वक्त भी बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि कीर्तनियों को बुलाओ। कहा नहीं कि क्या हो रहा है, कीर्तनियों को बुलाओ। कीर्तन कहने लगे, शान बजाएं, कीर्तन करना है। कहने कुछ नहीं, सीधा तू ही निरंकार। हर जी बोलिए धन गुरु नानक।
तू ही निरंकार के धुनी लगवाई बाबा नंदसिंह जी ने और अपने स्वास्थ्य आगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में जो सुना तू ही निरंकार, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत भी तू ही निरंकार, आखिर भी तू ही निरंकार, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये प्रेम है, प्रेम। प्रेम की बात तो कुछ और है। प्रेम हो तो एक बड़ी प्यारी घटना मन में आ रही है, बहुत प्यारी साखी है, एक बहुत प्यारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। आइए साथ साथ में साखी भी ले लेते हैं। आज मन कर रहा है बस यही धुनी ही लगाते जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन वृत्ति जुड़ जाए, एकाग्रचित होकर बैठो, आंखें बंद कर लो, पीठ सीधी कर लो, एकदम स्ट्रेट होकर बैठो, अदब से, सत्कार से, और मन जोड़ लो गुरु नानक पातशाह के चरणों में। अगर आंखें खोलो तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करो, आंखें बंद करो तो गुरु नानक के चरणों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक तो निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। गुरु नानक तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। धन्य गुरु नानक तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। गुरु नानक तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। तक दे ऐब गुनाह मेरे, मैं तकदा रहमतां तेरियां नूं। तू ना सुने और कौन सुने, तू ना सुने
धन गुरु नानक। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है। संगत दूर दूर से दर्शन करने आती है। जब दर्शन करने आती है तो संगत को एक दरिया पार करना पड़ता है, सतलुज दरिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दरिया पार करते बहुत सारी संगत आती है, तो बहुत सारे नाव वाले वहाँ पर काम करते हैं, जिन्हें मलाह कहते हैं। नाव चलाने वाले को कहते हैं ना मलाह, साडा तो ही मलाह साइया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाव चलाते हैं, किसी की बड़ी नाव है, किसी की बहुत बड़ी नाव है, जैसे जिसकी समर्थ है। इतिहास में नाम आया है मुसलमान का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम कुछ सैयद करके कुछ नाम था पहले। वो भी सेवा करता है, सेवा नहीं काम करता है, मतलब बहुत गरीब है। छोटी सी नाव है। नाव होती है ना टूटी फूटी, उसे रिपेयर करके बनाया होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब आदमी है। वो भी वहाँ पे आया, देखा काम है तो एक नाव छोटी मोटी ली, किसी तरह से ली और काम शुरू किया। अब उसमें बैठते हैं सिख यात्री। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख यात्री जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत करते हुए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत करते हुए आते हैं। वो रोज बातें सुनते हैं उनकी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुनता है उस्तत सुनता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे हैं, आज ये चमत्कार हुआ, आज ऐसे हुआ, आज ये घटना घटी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की हजूरी में। वो सुनता है सुनते उसके मन में प्रेम जागा। जो बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही जागता है ना, प्रेम कैसे जागता है? या तो पहले आंखें देखें या तो कान सुने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के बारे में सुना, मन किया देखने का। कोई कहेगा अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, अच्छा मैं भी जाऊंगा एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जिज्ञासा जागी। अभी प्रेम नहीं जागा, अभी मानो जिज्ञासा जागी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है जो दुनिया इतनी उस्तत करती है, उनके दर्शनों के लिए दूर दूर से आती है। इसका नाम सैयद कुछ नाम है, पूरा नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, पर समय बीतता गया। अब इसने खुद पूछना शुरू किया। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गए तो आज क्या हुआ आपके साथ जब वापस आए? तो वो बताते हैं आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये वचन किए। इसके मन में इतनी भावना श्रद्धा जागने लग गई कि ये वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत को कर रहे हैं और पल्ले में ये ले रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन वचनों की पालना करनी शुरू कर दी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे कहते हैं, ऐसे करना चाहिए, इसने अपने जीवन में ऐसे करना शुरू कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफी समय बीतता गया। जो भी संगत आती है इसे बताती है कि जा रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने। ये कहता है मेरी तरफ से भी नमस्कार कराना। तो कहते तू भी चल। तू क्यों नहीं चलता? कहता मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि अगर एक दिन दिहाड़ी नहीं कमाऊंगा ना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी कई बार फाके रखने पड़ते हैं। और अगर मैं चला गया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो मेरे मन में छवि है, जो प्रेम जागा है, अगर मैं चला गया तो मैं 1-2 दिन में वापस नहीं आने वाला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है मैं आ ही ना पाऊँ उनके दर्शन करके, तो मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा दर्शन करने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। मैं बहुत गरीब हूँ। इशारा करके दिखाता है सामने वो झोपड़ी है मेरी, वहाँ रहता हूँ मैं। टूटी फूटी झोपड़ी, टूटी फूटी नाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सारी संगत से कहता है जब भी जाती है संगत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मेरी तरफ से भी नमस्कार करना। हम कहते हैं ना अक्सर जा रहे तो दरबार साहब जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी माथा टेक देना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसे ही नहीं है सत्संग, ये व्यर्थ नहीं जाता। गुरु अंतर्यामी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा से वहाँ पे नाम भी ले लेना,
मन में कि इसने माथा टेका है, हाजिरी लगती है। बाबा नंद सिंह जी के पास एक आदमी बैठा है और किसी की निंदा कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि वो आपके बारे में ऐसे बोलता है बाबा जी। बाबा नंद सिंह जी कहता है ऐसे बोलता है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे पता नहीं वो तू तो उसकी बुराई कर रहा है, पर वो तो बड़ा कमाई वाला लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने का वो आपकी बुराई कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहते हो बड़ी कमाई वाला है, कहने कमाई वाला ना होता तो उसका बार बार नाम लिख के यहाँ पे हाजिरी कैसे लगवाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर उसका नाम यहाँ लिया जा रहा है हजूरी में तो कमाई वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव अगर किसी की याद हरमंदर साहब में माथा टेकने टाइम, गुरु साहब जी को माथा टेकने टाइम आ जाए, कोई कहे मेरा माथा टेक दो, हाजिरी लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये इसने सिखों से ये बात अपने मन की कही कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं जा सकता। बात आई गई हो गई, इसका प्रेम बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचनों को मान के सुनकर ये मुसलमान से अपने आप सिख हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए एक होता है कि धर्म परिवर्तन करना, किसी को जोर जबरदस्ती करना, समझाना, लालच देना। एक अपने आप किसी का मन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझना, जिससे प्रेम हो जाता है ना, इंसान उसके जैसा दिखना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सिंपल सी बात है। मुसलमानों में कई लोग दाढ़ी रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, आपने देखा है ना। तो किसी ने कहा कि दाढ़ी रखना जरूरी है, तो पीर, एक बहुत पहुंचे हुए पीर ने जवाब दिया कि दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। लोग दाढ़ी को प्रेम की निशानी समझ रहे हैं कि दाढ़ी रखे तो बहुत कमाई वाला होगा। नहीं, दाढ़ी प्रेम की निशानी नहीं है। दाढ़ी की वजह से प्रेम नहीं है, प्रेम हो गया इसलिए दाढ़ी रखते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पॉइंट को समझे। हमने क्या समझ लिया है कि इसने दाढ़ी रखी है तो इसका प्रेम है। नहीं, प्रेम है तो दाढ़ी रखी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब रखते थे, अभी हमारा मन करता है वैसे बनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ही इसका मन किया कि मैं भी सिखों के जैसा दिखूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर केस पसंद है मैं केस रखूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर अमृतवेला पसंद है मैं अमृतवेला उठूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर वाहिगुरु वाहिगुरु करना पसंद है, संगत कहती है, तो मैं अमृतवेला उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। इसका प्रेम बढ़ते जा रहा है, प्रेम बढ़ते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, और ये मन ही मन बर्दाश्त करने लगा। पाछा मेरी समर्था नहीं कि मैं आपके पास आ सकूं, कभी आप ही आ जाओ। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आइए, ये वही पंक्ति ऐसा लगता है। सुन लो मेरी पुकार गुरु जी, सुन लो मेरी पुकार गुरु जी, कर दो मेरा उधार गुरु जी, कर दो मेरा उधार गुरु जी, तेरे तो बिना मेरी कौन सुने, तेरे तो बिना मेरी कौन सुने, तेरे तो बिना मेरी कौन सुने, तू ना सुने और 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 कौन सुने। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसकी प्यास बढ़ती जा रही है दर्शनों की। अमृतवेला उठता है, अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर नाम जपता है, नाव में बैठता है,
पूरा दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत सुनता है, संगत आ रही संगत जा रही, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भक्ति में जीवन हो गया, प्यास बढ़ती गई, वचन मान रहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिसको दे रहे हैं वो मान रहे कि नहीं मान रहे पता नहीं, पर जो उसको सुना रहे हैं ये मान रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखो बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसाद दी तरिए। जो बचन मान ले बात तो उसकी बनती है। समय आया, दीवान सजा है, संगत बैठी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं इसकी खिंच इसकी प्रेम की लगी है, पर कह रहे आज चलो दरिया में घूम के आते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सिखों ने बेनती की जो इतिहास में लिखा है, क्योंकि अपने बेड़े थे बहुत बड़े बड़े, युद्ध की तैयारी रहती थी हमेशा, बड़े बड़े अपनी नावें थी जिसमें सारे सैनिक जा सके, हज़ारों में बड़े बड़े नावें थे। कहने के पाशा नाव तैयार करें, कहने के नहीं अपनी नावें नहीं, किसी के नाव ले लेंगे बस दरिया में सैर करके आ जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिखों से कहा घोड़े पे सवार हो जाओ, सब घोड़े पे सवार हो गए, जितने भी साथ में लेने थे चल पड़े। दरिया किनारे पहुंचे, जैसे ये बात फैली ना सत्संग जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा होता ही है ना कि कोई आने वाला पता चल जाए, बात फैल जाती है। तो दरिया किनारे ये बात उनके आने से पहले फैल गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ रहे हैं आज, और किसी भी नाव में बैठकर वो दरिया की सैर करेंगे। तो सब बड़ी बड़ी नाव वाले ने अपनी नाव धोई, सजानी शुरू कर दी, रेशमी कपड़ों से बैठने के लिए अच्छे अच्छे आसन, खुशबू, इतर, फूलों से सजाया नाव को कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरी नाव में बैठेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरी नाव में बैठेंगे। तो जब इसे पता चला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, तो इसका मन बैठ गया। इसने देखे दूसरी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर नाव, और अपनी नाव की तरफ देख के शर्मा गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मेरी नाव में कैसे बैठेंगे, इतनी टूटी फूटी नाव। लोग भी मेरी नाव में चढ़ते हैं तो डर के चढ़ते हैं, पैसे कम होते हैं तो मेरी नाव में चढ़ते हैं कि कम लेगा ये, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरी नाव में क्यों बैठेंगे? फिर भी इसने आस ना छोड़ी, मन घबराया, शर्माया, और इसने अपनी नाव को साफ किया, जितनी समर्था थी उसे सजाया, और एक आसन बनाया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बैठने के लिए कि यहाँ बैठेंगे अगर आ गए तो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है तो नामुमकिन, पर मेरा फर्ज है मैं तैयारी करके बैठूँ। और जब ये नाव सजा कर बैठा है तो लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आसपास के लोग जो नाविक हैं, जो मलाह हैं, इसे देखकर हंस रहे, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, भाई तू क्यों सजा रहा है, तुझे क्या लगता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तेरी नाव में आके बैठेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसने भी सोचा बात तो सही है, मेरी ऐसी टूटी फूटी नाव, मैंने सोचा भी कैसे कि महाराज मेरी नाव में बैठेंगे। तो ये अपनी नाव से उठ के झोंपड़ी में जाके बैठ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। झोंपड़ी में जाके बैठ गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, नदी किनारे उतरे, खड़े हो गए, सब नाव वाले भागे भागे आए मिला कि पाछा मेरे नाव में चरण डालिए, मेरे नाव में चरण डालिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक एक नाव को देखते जा रहे हैं, और जब भाई इसे सैयद की नाव आई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये नाव किसकी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे एक सैयद करके है, उसकी नाव में पहुंचा, वो वहाँ रहता है, सामने टूटी फूटी झोंपड़ी, वहाँ रहता है, मतलब नाव में नहीं हो तो वहाँ होगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चल के उसकी झोंपड़ी की तरफ चल पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काट काट के अंतर की जाने, तो वो तो प्रेम के भूखे हैं, नाव के नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अगर समझ में आ जाए ना किसी को, बाबा नानक सिंह जी थोड़े दिन पहले घटना आई थी, याद है ना? बाबा नानक सिंह जी कहने लगे वो क्या नमक मिर्च मसालों का भूखा है गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो प्रेम का भूखा है, जिसने श्रद्धा प्रेम से भोजन तैयार किया तो कैसे मांग के खाया गुरु नानक पातशाह ने, और जब झूठा करके देश देकर देखा तो गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं खाना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बार बार पंक्ति आती बाबा नानक सिंह जी के माइंड में कि एक ही प्रेम सच्चा है इस संसार में, गुरु का और सिख का, बाकी सारे प्रेम झूठे हैं, सारे नाते झूठे हैं, एक ही सच्चा प्रेम है। यहाँ पर सच्चा भी ऐसा कि अगर सिख शिष्य एक बार याद करता है गुरु नानक को, वो करोड़ बार याद करता है।
चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेता है। पावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे ताही गुरु सर्व निधान दान देते हैं। कि हर जे बोलिए धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा भावना से एक कौड़ी का चौथा हिस्सा भी रख दे गुरु के आगे, गुरु सारे संसार के सुख उसे दे देता है भावना से। कि हर जे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चल के उसकी झोपड़ी के पास, कुटिया के पास कह लीजिए, आके बाहर खड़े हो गए और आवाज़ देने लगे। और पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे आवाज़ दी। उसका नाम पहले कोई सैयद करके था, पूरा नाम मुझे याद नहीं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पहली बार उसे बुलाया। उसको क्या बुलाया? ओ भाई सैदा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सैदा। तो हैरान हो गया, इतने प्रेम से मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया, और ये नाम कैसा है इतना प्यारा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम और इतना प्यारा और इतने प्रेम से कभी मुझे ओए करके सब बुलाते हैं, भाई कह के किसी ने नहीं बुलाया आज तक। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर आकर देखा, जैसे ही दर्शन किए पहचान गया, क्योंकि हृदय में बस गए थे, कलगी लगी हुई है मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री दसम ग्रंथ में एक पॉइंट लिख के गए, क्या लगे? श्री कृष्ण जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर उनके शरीर था कि एक बार कोई उन्हें देख ले आगे बढ़ नहीं पाता था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख के गए भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। और लिखारी भाई नंदलाल जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि आदमी तो छोड़ो जानवर भी आगे नहीं जा पाता। हर से बोलिए। ये प्रेम है ना, ये प्रेम है। प्रेम में अपने गुरु की जितनी उस्तत करो उतनी कम है। वाणी कहती है सतगुरु वड्डा कर सलाहिए, जितना है उतना नहीं, बड़ा करके बता अपने गुरु को। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस विच वड्डियां वड्याइयां, हम कहते ना ऐसा नहीं, ज्यादा तो ज्यादा जितना बढ़ा के बता सकता है बता, अपने गुरु की उस्तत बढ़ा के कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु वड्डा कर सलाहिए, जिस विच वड्डियां वड्याइयां। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वड्डी हूँ वड्डा अपार, तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा। जियो अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा, वैसे तेरा कर भला, तेरा कर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिशा जत कथा, नानक दासन दास तो जागे बिन बता। वड्डी हूँ वड्डा अपार, तेरा मर्तबा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई शादा बाहर आया, दर्शन किए, चरणों में गिर पड़ा, रो पड़ा। पाछा आप मेरी झोंपड़ी के पास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह लगे, रोज तो बुलाता रहता है कि आओ आओ मेरी नाव में बैठो, रोज तो बुलाता है, आज आए हो तो अपनी झोपड़ी में जाके बैठ गया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। शर्माता वो, पाछा मेरी नाव बहुत छोटी है। कहने लगे चल। भाई सदा आगे आगे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पीछे, सिख साथ में हैरान। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे सिख, जितने सिख साथ में, सबको कहा नाव में चढ़ जाओ। सब एक दूसरे को देख रहे, इतनी छोटी नाव डूब जाएगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सादा भी 1 मिनट के लिए घबराया। इतिहास में लिखा है वो भाई सादा सोच में पड़ गया, इतने लोग चढ़ गए नाव पलट जाएगी। फिर ख्याल आया तारने वाला साथ बैठा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैठ गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो आसन बनाया था वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे, बाकी सारे सिख चिपक के खड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई सादा ने बेड़ी चलानी शुरू कर दी, दरिया की सैर कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सिख हैरान है पर जानते हैं गुरु गरीब निवाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 2 पंक्ति ये भी गाली बड़ी प्यारी है, बाबा आनंद सिंह जी पढ़वाया करते थे। मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज।
बार बार बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ रहे हैं, क्योंकि कल उनका जो आप लोगों की भाषा में जन्मदिन कहते हैं, पर उनका आगमन पूर्व है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। कल बहुत बड़ा दिन है हमारे जीवन का, जैसे गुरु रामदास जी का दिन, वैसे बाबा नंद सिंह जी का दिन। क्योंकि अगर वही ना होते ना, बाबा नंद सिंह जी का जीवन ना मिलता, उनका सानिध्य ना मिलता, उनका मार्गदर्शन ना मिलता, तो ये कीर्तन भी ना हो रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन तो होता ही है, क्योंकि करने वाले गुरु नानक भी बुला लेगा। मुझे ये दात ना मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं इस लायक ना होता कि मैं कीर्तन कर सकता, अगर बाबा नंद सिंह जी का मार्गदर्शन न मिला, तो उनकी कृपा ना होती। तो मेरे जीवन के लिए तो सबसे बड़ा दिन है बाबा नंद सिंह जी का। और एक्चुअली हर एक के जीवन के लिए हमें जो कुछ मिला है, जो हम रोज़ सुनते हैं, ऐसा मुझे बताओ एक भी कथा हो जिसमें बाबा नंद सिंह जी के वचन ना आते हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर पहलू पर रोशनी डाली उन्होंने, हर पहलू पर, और प्रेमा भक्ति की चरम सीमा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान उन्होंने दिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कैसे करना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा कैसे करनी है, ये गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम श्रद्धा किसने भरी है? बाबा नंद सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। सेवादारों से बेनती है, लंगर वाले कल कुछ मीठा जरूर बनाना, बढ़िया कुछ। बाबा नंद सिंह जी का आगमन पूर्व है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नानक रोड की गाड़ी भी जो जाती है, मैं सेवादारों से बेनती करूँगा, ज़रूरतमंदों के लिए कुछ बढ़िया सा लंगर बना के और मीठा भी जरूर लेकर जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। मेरा दाता गरीब निवाज, गरीबों को निवासता है, अमीर निवाज नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाव में बैठे हैं, वो नाव चला रहे हैं। सिखों ने कहा है उसे कि उस पार लगा दे, नाव को घुमा के उस पार लगा दे, थोड़ी देर वहाँ जाएंगे फिर वापस आएंगे। और भाई सादा क्या कर रहा है? मन में सोचा एक बार वहाँ छोड़ दिया, क्या पता आते वक्त फिर दूसरी नाव में बैठ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो दर्शनों से मन ही नहीं भर रहा, वो नाव को कभी लेफ्ट चला रहा है, कभी राइट चला रहा है, इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है, सीधा नहीं चला रहा, कहीं किनारा ना आ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। सिख उसे घूर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, सीधा चला, पर वो चला ही नहीं रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मन की अवस्था समझते हैं कि जिन आंखों को इतना तरस गई हो दर्शनों के लिए, इतने साल हो गए हो इंतजार में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उस नाव में बैठे, वो कैसे किनारे पे लगा दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि सुबह सुबह बैठे हैं नाव में, दोपहर हो गई, शाम होने को आई, आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, सहदिया नाव को किनारे में लगा दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई सहदा गुरु गोविंद सिंह जी के वचन कैसे मोड़े, नाव को किनारे पे लगाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाव में ही खड़े, भाई सहदा हाथ जोड़ के खड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों को इशारा किया, उन्होंने सोने की मोहरों की थैली भाई सहदा को दी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बेटा दे रहे हैं, ले ले, तेरी मेहनत आने। उसने हाथ जोड़ दिए, अच्छा नहीं, हाथ जोड़ दिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या करते थे? चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे। हाँ ये भी पढ़ लेना, बहुत दिन हो गए नहीं पढ़ा। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, चोजी मेरे गोविंदा,
किसी के मन में ये बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस समय दर्शन दिए थे, अब कहाँ देते होंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना महापुरुषों ने मुझे सुनाई, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बीच में उनका नाम लिया था, उनका फ़ोन आया था, मेरा नाम नहीं लिया कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्होंने घटना सुनाई, कह लगे मेरे साथ भी थी। इंग्लैंड में गए थे कीर्तन करने, इंग्लैंड की घटना। दास ने ये घटना बहुत साल पहले शायद सुनाई भी है, शॉर्ट में लेके आगे बढ़ता है। किसी के मन में ये हो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अब कहाँ आते होंगे। कहने लगे एक अंग्रेज एक सरदार जी आए मेरे पास और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। हुआ क्या? कहने लगे मैं खाली रह गया। कहने लगे सारी बात बता, क्या खाली रह गया, क्या हुआ? कहने लगे कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश रखता हूँ घर में, रोज़ भोग लगाता हूँ मर्यादा से, सब कुछ जैसे करना है वैसे करता हूँ, हुक्मनामा पाठ नित्यनेम सब करता हूँ, पर सारी दातें तो मेरा नौकर ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की खुल के बता। तो उसने बताया, अमीर आदमी है वहाँ का, लंदन का, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, नौकर चाकर हैं और सारे नौकर चाकर अंग्रेज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना अमीर है। बाहर के देश में नौकर रखना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई रख ही नहीं सकता। अब इसके पास है, ये रोज़ मर्यादा से गुरु साहिब जी के लिए लंगर प्रसाद बनाता है, भोग लगाता है, सब कुछ करता है। एक दिन कहता है मुझे बाहर जाना पड़ गया। तो मेरा जो सबसे करीबी नौकर था जो सेवा करता था, मैंने उससे कहा कि आज भोग तू लगा देना, तू रोज़ देखता है मैं अंदर जाता हूँ, भोग लगा के आता हूँ, तू लगा देना, मर्यादा है गुरु साहिब जी को तू लगा देना। पर नौकर क्या सोचता था, वही बात हो गई, भोला भाव गोविंद मिलावे। नौकर देखता था कि ये अंदर जाते हैं, ये क्या करते थे, भोग लगाते थे अरदास की जैसे हम करते हैं, और फिर अंदर ही बैठ के साइड में बैठ के खुद ही भोजन खा लेते थे। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और बर्तन बाहर ले आते थे, थोड़ी देर बाद नौकर देखता था कि बर्तन आ रहे हैं तो उसे लगता था गुरु नानक पाशा खाते हैं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। उस कमरे में के सरदार जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीर लगा के रखी थी, कलगिया वाले घोड़े पे सवार। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो सरदार जी चले गए अपने काम से, किधर बाहर नौकर गया भोग लगाने और बैठ गया, भाई खाओ। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मालिक बता रहे हैं महापुरुषों को, कहने का उसने जो मुझे बात बताई, जो सारी घटना बता रहे हैं। कहने के जब मैं आया वापस तो मैंने कहा भोग लगा दिया, तो कहाँ लगा दिया, तो उन्होंने सब खा लिया। वो आए थे, उन्होंने सब खा लिया। ये कहने का क्या बोल रहे, क्या खा लिया? अगर खाया तो कह दे खुद खा लिया, भूख लगी थी खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्यों कह रहे कि गुरु ने आके खा लिया? फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो नौकर कहने लगा भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ, वो गुरु जी आए थे, उन्होंने खाया, जिनको आप रोज़ खिलाते हो, वो चले गए। मालिक कहने लगा सरदार जी मैंने उसके ज़ोर से खींच के थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे कि तू मेरे साथ मजाक कर रहे गुरु को लेकर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के थप्पड़ मारो, उसकी आंखों से आंसू आए। कहने के आओ मेरे साथ। फोटो कमरे में जाके कहता ये आए थे ये, तो मालिक फिर और गुस्सा आ गया। कहने के देख दूसरा थप्पड़ खाएगा। कहने का मेरी बात मानो, नीचे गया, उनका बगीचा था, बगीचे में घोड़े के पाँव के निशान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने घोड़े के पाँव के निशान। कहने लगा उन्होंने घोड़ा यहाँ इस पेड़ से बांधा था बगीचे में, और ऊपर आके भोजन खा के इसी घोड़े में बैठ के चले गए, आप मुझे मार रहे हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मालिक कहता है फिर तो मेरा, वो सरदार जी कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, आसपास दूर दूर तक कोई घोड़ा है ही नहीं, और फिर मैंने यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाए, पता किया कोई घोड़ा किसी का कुछ यहाँ पे आया हो, किसी वजह से आया हो, कोई पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो इशारा करके तस्वीर की तरफ दिखा रहा है, गोविंद भाव भगत का भूखा। एक अंग्रेज को दर्शन दे गए क्योंकि उस लोग सच में खाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम खाली क्यों रह गए, हम चालाक लोग हैं, हम चुस्त लोग हैं, हम तेज लोग हैं। सुना था ना तेज पत्ते के बारे में। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम वो तेज लोग हैं, ना इधर के ना उधर के, ना पूरा भावना बना पाते हैं। हमारा वो हाल है, सलाम जवाब दुबे करे मुंडो कुथा जाए, माथा भी टेकते हैं और सवाल भी पूछते हैं ऐसा क्यों। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते मैं खाली रह गया। महापुरुषों ने घटना खुद सुनाई, रिकॉर्डिंग पड़ी है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जब नाव किनारे लगी
तो भाई सैदा हाथ जोड़कर खड़ा है, सोने की मोहरों की थैली दे रहे, मना कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इशारा किया सिखों को, ये एक और थैली दे दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शायद इसे कम लग रहा है, ये ज़्यादा दे दे। वो हाथ जोड़कर सर झुका दिया, कोई एक टका ना दे जिस इस बेड़ी का बैठने का। स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे रहे हैं, दूसरी मोहरों की थैली दी, तब इसने रो पड़ा। भाई सैदा कहते हैं पातशाह मैं नहीं लूँगा। कहने की तेरा रोजी रोटी है, तेरा ये काम है, नहीं लेगा तो बच्चे क्या खाएंगे। हर जगह बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। कहने का आज दिन भूखा रह लूँगा पातशाह, एक दिन मेरे बच्चे भी भूखे रह लेंगे, पर आज मुझे ये नहीं चाहिए। और वैसे भी उसने एक पॉइंट कहा बड़ा प्यारा, कहने लगे हम लोग मलाह है ना आपस में, समझो मैं किसी मलाह की बेड़ी में बैठ जाऊँ, वो पार लगा दे तो मुझसे पैसे नहीं लेते, और मेरी बेड़ी में कोई मलाह बैठ जाए मुझसे पैसे नहीं लेता, मैं आपसे कैसे ले लूँ। तो सिख नाराज हो गए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मलाह कह रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। ये वही घटना घटी जो राम जी और खेवट में घटी थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिखों ने घूरा कि तू कैसे कह रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मलाह कह रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इशारा किया, कहने की सद्या खुल कर बता क्या कहना चाहता है। कहने के पातशाह मैंने आपको अपनी बेड़ी में बिठा के इस दरिया से पार किया है, आप भवसागर से पार कर देना, आप संसार के मलाह हो। इस भवसागर से पार कर देना पातशाह, अगर मुझ पे तरस किया ही है, मेरी बेड़ी में आके बैठे हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे सदिया तेरे प्रेम के सदके तुझे क्या, गिन कितने शरीर हैं, कितने लोग सिख बैठे हैं नाव में, तो गिने तो 20 सिख थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहे मुझे पकड़ के 21 हो गए। हर जगह बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। तू कहता तुझे भवसागर से पार कर दे, तेरी 21 कुलों को भवसागर से पार किया। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर देने पे आ गए, 21 कुलों को तार दिया, कहीं यहाँ तारा होगा इस संसार सागर से भी और उस भव सागर से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग सुखिए और लोग सुहेलिए। जो जी मेरे गोविंदा, जो जी मेरे प्यारे
वाहिगुरु 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 तन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तन गुरु नानक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।
पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान। जब उद करक करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करक करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उदार। तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान। महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा कैबज सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देनी। कहूँ फूल राजा हव बैठा समट प्यो संतरे बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर इनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते है आगे काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट जाय निहारो आके तापत नगमो हरो। और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा पास देताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोग ते ले बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਨਾਮ ਸਮਰਸ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਦਿਸਿਆ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿ ਕਰਤਾਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਟੇ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਆਦਿਕ ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ। ਮਨ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਟੇ ਜਾਨੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ। ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
शुक्र मनावा गुरु जी तुहाडे बिन साडा दिल हुण नहीं लगदा गुरु जी तुहाडे बिन साडा दिल हुण नहीं लगदा कीते जो एहसान मेरे ते कीते जो एहसान मेरे ते कदी ना भुलावा तेरा शुक्र मनावा तेरा शुक्र मनावा गुरु जी तुहाडे बिन साडा दिल हुण नहीं लगदा गुरु जी तुहाडे बिन साडा दिल हुण नहीं लगदा 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 जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।